for a minute. मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ 1 मिनट के लिए सभी यहाँ पर खड़े होंगे और श्रद्धांजलि देते हुए सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, पीछे भी प्लीज एवरीवन. So with round of applause, everyone. Absolutely gorgeous, Payal ma'am on stage, please. With round of applause, please. और कुछ और नाम जिन्होंने अपनी बेहतरीन कलाकारी अदाकारी आपको इस मूवी में दिखाई और देखने को हमें मिलेगी. So we have to watch we have to actually wait for the release. मैं उन वो सभी नाम आप सभी से रूबरू कराते हुए समर्थ चतुर्वेदी, अनूप अरोड़ा जी, मिस्टर मनोज टाइगर, मिस श्रद्धा यादव, मिस्टर संतोष पहलवान. So that तालियां हो जाए for all other actors as well. And in this Bhojpuri movie, there's not only one but lot of celebrities whom we all would be witnessing. हम उन सभी को देखने वाले हैं upcoming movie में और बहुत से नाम already मैं आप सभी से रूबरू करा चुकी हूँ. तो मैं एक और बार कुछ नाम आपके बीच लेते हुए जिनका हम इंतजार अभी कर रहे हैं, आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा. Here we have Prem Chopra sir, फिर से जोरदार तालियों के साथ. And in this movie we are going to witness performance of Mr. Ranjit sir. Ranjit sir की performance भी आपको देखने को मिलेगी. रजा मुराद sir, Bruna Abdullah, Sara Khan, Ehsan Qureshi, Sunil Paul and Sambhavna Seth. Thank you so much everyone. I think I don't have to remind you every time for a round of applause. We all are gathered here for this and I'm going to take few minutes. So let's appreciate all of the actors for their brilliant acting with round of applause. Thank you so much. So Raghav, what I feel that मेरे साथ साथ यहाँ पर बाकी सभी इंतजार कर रहे हैं ट्रेलर का. So let's not wait. अब हम किसी को भी ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे. We won't be wasting time and let's start with the trailer. I request to kindly start with the trailer of this Bhojpuri movie Halfa Macha Ke Gaye. I request the management to kindly switch off the lights or dim the lights, please. हमारा नालायक बेटा कृष्णा देश नेता से परेशान बा, बाप बेटा से परेशान बा. प्यार में से प्यार के नजराना कबूल. मेरी दीदी ने भी किससे शादी कर लिया, आपको तो अंग्रेजी आती नहीं है. तुम्हारी छाती के नीचे जो तेल बना वो बड़ा गजब था. ये कैसे हो गया, आपको पता कुछ? अब नहीं बता रहे थे. तू अपना नालायक बेटा खातिर हमरे बिटिया का हाथ मांगा था. अगर तू हमारे बचपन का संगतिया न रहता ना तो तोहरा की चौखट से धक्का देके बाहर कर देती. जब से तोरा के देख ले बनी और आज वो अरमान पूरा हो जाए.
देखेगा। यहाँ बैठ के ढाबा पे या गोरत बाड़ा तोहरे घरे के घी के मालपुआ दूसर कोनो खाद बा। जवान मेहरारू जान कैंप इससे ईद बच जाई पर हम अपन बेटा के बारात लेके आए। अगर हमरे इज्जत पर बात आई ना तो खुश नजर। गीता के मांग भरल तो दूर, अगर तो हरद्वार पूजा भी हो गई ना तो मान जाए कि तुम बता। तो we are sure that this movie stores a lot of entertainment. ढेर सारा entertainment अपने ही अंदाज में लेकर ये मूवी यहाँ पर आएगी, जो कि रिलीज होने में कुछ दिन बाकी हैं. So let's be ready for that. By the meanwhile, I request everyone, round of applause for Rakhi Sawan, absolutely stunning and gorgeous. Thank you so much, ma'am, for joining in. We are delighted to have you amongst us. I request you to kindly be seated. Now I request our chief guest, prestigious, and our dignitary, Abbas Mastan sir, to come up on stage, please. I request Bollywood actor, versatile and captivating, Mr. Sunil Shetty to join us on dais, please. I request living legend, Mr. Prem Chopra, to please come up on stage. Now I request Payal ma'am to join us on stage, please. I request you, sir, to please come up on stage. I already made announcement. Please, sir, join us on stage. Zordar taaliyan ho jaye, everyone. Yes, sir. I request Rakhi ma'am to come up on stage, please. Rakhi ma'am. Well, with round of applauses once again. I won't be sparing you for next few minutes. I request you, everyone. Let's cheer them up, everyone. By the meanwhile, I would like to call upon the producer of this movie, Mr. Ramesh Nair, on stage. I request the director, sir, Mr. Primanshu Singh, to come up on stage, please. And without the next name, we cannot even release the audio. I request from Yashi Music, Mr. Sinha, to come up on stage, please. So now we are ready for the audio release. And by the meanwhile, I request ma'am to come up on stage along with Nidhi, please. Please, ma'am. अरे बैठ जा भाई, बैठ जा, हट जा ना, हट जा भाई, 10 मिनट के लिए बैठ जा, 10 मिनट के लिए. And now I request everyone with round of applauses. Here we have another brilliant actor of our Bollywood industry. The name who needs no introduction at all. Raza Murad जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी to please come up on stage. And our music director of the film, Mr. Ghungru, I request you to please join us on stage. I request Mr. Ghungru to come up on stage, please.
and the choreographer of the movie. I request you to please be on dais. We have been watching all those exciting dance moves. I request you to be on stage, please. जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए. I believe now we are all set to release the audio, and for that I request with the countdown we are going to release the audio. बैठ जाना यार, निकल जा, जल्दी निकल जा, भाई निकल जाना, निकल जा. Also our chief guest. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Everyone put your hands together. So now we release the audio of this film officially. Many congratulations to the entire team and the star cast. I request once again with round of applause everyone. जोरदार तालियां हो जाए. Now I request after a few of the pictures. Alright. सर मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कुछ लफ्ज़ों के साथ आगे बढ़ते हुए. हमने अभी ट्रेलर यहाँ पर दिखाया, ऑडियो रिलीज हो चुका है, तो आप राघव के लिए जो कि इस मूवी में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लीड एक्टर के किरदार में हमें नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो गौरव को, रमेश, राघव रमेश जी को, जो पिक्चर के लिए हमारे जो पप्पू साहब हमारे बहुत पुराने पहले, एंड शेट्टी साहब हमारे बहुत अच्छा लग रहा है. पायल हमारे पिक्चर में भी चल रहा हूँ, आप आए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. रजा साहब खाना हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस पिक्चर के लिए. ट्रेलर हमको बहुत अच्छा लगा, और भी मैसेज भी है, और मैसेज है, और नाम का सारा फिल्म एक्शन, गाने और अच्छे रोमांस, तो बहुत कम राघव की ये फर्स्ट फिल्म है, तो हमको बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी फैमिली को, उनकी मम्मी, उनकी बहन, रमेश जी और पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से. बहुत विशेष फिल्म खूब चले और बहुत नाम रोशन हो राघव का. हमारे बेस्ट विशेष, गॉड ब्लेस. और सबने जिनको ब्लेसिंग देना आया उनके लिए हम लोग बहुत बहुत, हम लोग गैस वैस कुछ भी नहीं, हम लोग तो सिर्फ टेक्नीशियन हैं, लेकिन जो हमारे साथ जो टीम यहाँ पर खड़ी है सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन. मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुनील शेट्टी सर कुछ कहें. आई एम श्योर सर, क्योंकि आप खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है. यू आर अ ग्लोबल आइकन. वी हैव सीन यू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स इन लॉट ऑफ मूवीज. लेट इट बी रोमांटिक, लेट इट बी एक्शन. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से फॉर दिस मूवी? It's always exciting for a youngster, you know. और I've seen Raghav को काफ़ी सालों से जानता हूँ, और ड्रीम थी उसकी. So I wish the entire Nair family the very best. I think शायद जितना राघव excited उससे ज़्यादा माँ और बहन excited होगी. And the father who has always shown so much love and immense love for his son. I wish them the very best. और मैं मानता हूँ कि ये फिल्म चलेगी, क्योंकि जब अब्बास भाई और मस्तान भाई किसी फिल्म को रिलीज करते हैं, ऑडियो रिलीज करते हैं, हमेशा लकी कहा जाता है. शुरुआत सही है, and stalwart actors, Raghav bhai, all of you, so I think the entire team the very best, Papuji, the director, all of you the very best, and like always, make sure that you score and score big and give it your best. Thank you. Now I request Payal ma'am, we have
been watching you. I have seen this trailer more than thrice, and every time this item number, I'm sure is going to be a party anthem. So what would you like to say? Like you have a very special appearance in the movie. Well, congratulations to everybody, especially Raghav, Ramesh जी, आपको, आपकी sister, जो आपकी sister को का नाम भूल गई मैं, and it's been a pleasure to work with them because Ramesh ji is a very good friend of Sangram. And जब उन्होंने बोला कि there's a song, वो भी हिंदी में है, एक भोजपुरी फिल्म में, so I was like really excited because as an actress we all love to sing and we love to dance. So I really hope ये गाना आप सबको अच्छा लगे. And जैसे सुनील सर ने बोला, अब्बास मस्तान जी आए हैं, उन्होंने ऑडियो रिलीज किया है. So I think that it can't get more auspicious than this. And I really hope this film works in the Bhojpuri film industry because regional cinema is supposed to be appreciated, I think, all over India. India is not just Hindi films, it's an accumulation of regional films, whether it be Bhojpuri, South, Telugu, Punjabi, Gujarati, and I think that's great to be a part of a regional film. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for those remarkable words, I must say. Sir, आप तो एक्टिंग के बादशाह हैं, तो मैं चाहूंगी प्लीज आपने ट्रेलर देखा, आप क्या कहेंगे मूवी के बारे में? मैं ये कहूंगा कि राघव जो है एक एक्टर नहीं है, डायनामाइट है। राघव जो है एक एक्टर नहीं है, फोर्स है, फोर्स। जिस तरीके से आप आंधी को रोक नहीं सकते, तूफान को रोक नहीं सकते, इसी तरीके से आप डायनामाइट, आप फोर्स को नहीं रोक सकते। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म जो है, मैं से कहूंगा हल्ला मचा के गई, हल्ला मचा के गई, हल्ला मचने वाला है, यकीनन मचने वाला है। और सिर्फ हल्ला ही नहीं मचेगा, बल्कि इतिहास लिखा जाएगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इतिहास लिखा जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे छोटे भाई रमेश नैयर साहब को। बात कम करते हैं, काम में विश्वास रखते हैं, तो इनके लिए एक शेर कहूंगा, इनकी नजर करूंगा। बात कम करते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। उन्हें बोलने की क्या जरूरत है, उनका हुनर बोलेगा, उनकी फिल्म बोलेगी। अच्छे नियत के इंसान हैं, नियत में हरकत है और हरकत में बरकत है। आई विश my heartfelt congratulations, my good wishes to this young dynamic actor, and I'm sure that he's going to take the whole film industry by storm. Mark my words. Thank you so much, sir. And we welcome Sunil sir on stage. सर आने में थोड़ा सा लेट हो गए, सर को ट्रेलर हम दोबारा से दिखाएंगे. By the meanwhile, I request Rakhi ma'am to say a few words, please. Ma'am, I must say looking gorgeous. थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। लेकिन मैं राघव को बहुत बहुत मुबारक कहना चाहती हूँ, रमेश जी को और पूरी फैमिली को। राघव को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, जिनमें इतनी मेहनत करते हैं, डांस करते हैं, एक्रोबाइट्स करते हैं। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले रज़ा जी उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत पूरी प्रैक्टिस करके आए हैं और बहुत अच्छे डांसर हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी फिल्म बहुत अच्छी जाएगी और सारे सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे जाएंगे। एंड पायल, शी इज़ माई फ्रेंड, और बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग किया है। मुझे लगता है पायल तुमसे अच्छा वो डांसर नहीं है, और तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आई थिंक डांसिंग में कोई राखी को बीट नहीं कर सकता। चलिए सुनील सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और सर आप लोग का आशीर्वाद सब पर रहे सर, बिकॉज आप बहुत नंबर 1 डायरेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री में। रज़ा जी, सब लोग को बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आपकी फिल्म एकदम सुपरहिट हो जाए। थैंक यू। I request Mr. Lakhani to please join us on stage.
Thank you so much, ma'am, for such kind words. Now I request Sunil sir to say a few words, please. Sunil sir. सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए सैनिक आप थोड़ा सा लेट हो गए ना? मैं लेट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये फिल्म सभी लोगों ने बोला जैसे सेम टू यू। जितनी फिल्म की लागत है 100 गुना ज्यादा कमाए या और ज्यादा दे। आप बहुत कमाओ माल, आप बहुत कमाओ माल, कमाते कमाते गुजर जाए साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। और ऐसी फिल्में आप बनाते रहिए। इस फिल्म में तो गेस्ट अपीयरेंस है, एज ए गेस्ट बुलाया था रमेश जी ने। दुआ करता हूँ अगली फिल्म में पेइंग गेस्ट बुलाए। राखी जी के बारे में क्या कहूँ? राखी तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर इतनी खूबसूरती है, इतनी सुंदर दिखती हो राखी, तुम्हारे सामने पानी कम है बाकी। बहुत अच्छा बोलती है राखी सावंत। एक बार राखी सावंत ने अपना स्वयंवर रचा लिया था और हमारे कवि मित्र एहसान कुरैशी ऑन द वे आने वाले, वो चले गए थे राखी से। राखी का स्वयंवर हो तो पता है ना आपको? उसके बाद वो चैनल बंद हो गया था। इमेजिन कीजिए कौन सा चैनल था वो। तो राखी सुनिए ना, एहसान कुरैशी चले गए थे शादी की बात करने के लिए। किस तरह से देखिए, राखी 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 बनोगी क्या मेरे भतीजों की काकी, तू शराब में साकी, बस दुआ चाहिए तेरी माँ की। माँ मुझ पे एहसान करना, मेरे लिए ये एहसान करना। इनके साथ में जावेद अख्तर साहब भी चले गए थे। जावेद साहब जो हमारे बहुत ही फेवरेट थे। तो दुनिया में जावेद साहब के बारे में एक बात बता दो जो मैंने ऑब्जर्व की है। थोड़ा 2 मिनट आप करूँगा, आप सुनेंगे ना आप लोग? तारीफ भेजा दीजिए पर। जावेद साहब के बारे में जो मैंने छोटी सी चीज ऑब्जर्व की है, वो दुनिया में ज्ञान देने आए, लेने नहीं। तो वो जावेद साहब राखी से शादी की बात करें। राखी आपसे बात करें, जावेद साहब बोलिए। भाई देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैं ये नहीं कहता कि यकीन मानिए सही चीज हो तो जावेद मियाँ दाद देगा, सही चीज हो तो जावेद मियाँ दाद देंगे, और गलत चीज हो तो जावेद मियाँ डांट देंगे। यकीन मानिए तो राखी तुम दुल्हन बन के तब आना जब घर में ना हो शबाना। हमारे रजा मुराद साहब आवाज के बेताज बादशाह, जब भाभी को पहली बार रजा साहब से प्यार हुआ था, भाभी को पहली बार जब रजा साहब से प्यार हुआ तो भाभी गई अपने पापा के पास, बोले पापा पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। तो भाभी के पापा ने कहा कौन है वो नामुराद? बोले पापा गलत कर रहे हैं आप, वो नामुराद नहीं रजा मुराद है। तो शुभकामना है। और ये मेरी खूबसूरत को एंकर आ गई। मैंने इनको कहा था कि मुझे एंकर रख लीजिए, उनको एंकर चाहिए, भयंकर नहीं। बहुत सारी शुभकामनाएं और तहे दिल से इसके लिए भी शेयर करना चाहूंगा कि बेवफा तेरे प्यार में इस, आप वाह कीजिए, बेवफा तेरे प्यार में इस कगार पे आ गया, बेवफा तेरे प्यार में इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। Thank you so much, sir, for the next questions. Now I request our director, sir, to say a few words, please. नमस्कार। इतने सारे बड़े लोग इस मंच पे मौजूद है, साथ में मैं मौजूद हूँ इनके साथ, ये मेरी खुशनसीबी है। और सब ने फिल्म के बारे में जो शुभकामनाएं दी है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और राघव के बारे में सब लोगों ने तारीफ की और बाकी वो तारीफ के हकदार है, वो काबिल तारीफ है। फिल्म रिलीज होगी उसके बाद मुझे लगता है कि राघव को रुकना नहीं पड़ेगा, फिल्म इंडस्ट्री में वो एक अपना अच्छा मुकाम बना के रहेगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. And now I request Mr. सिन्हा, मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज सर कुछ कहें। ऑडियो रिलीज हो चुका है, बहुत ही कमाल की गजब के नंबर्स हैं और आई एम श्योर कि ये जो मूवी है इट इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। तो आप प्लीज थोड़ा सा आगे और कुछ कहें। रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी कंपनी को म्यूजिक दिया। जब इन्होंने मुझे गाना दिखाया तो हमने बहुत सारी फिल्में बनाया, लेकिन इन्होंने जो गाना दिखाया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हम भगवान से दुआ करेंगे कि फिल्म बहुत चले, सुपर हिट हो। धन्यवाद।
Also, we welcome the lead actress of this movie. You're a bit late though. Thank you so much for joining in. Thank you so much. Now I request all of you, please, a group photograph के लिए with all those widest smiles on the faces, आप please join कीजिएगा सब, everyone. I request Rakhi ma'am to come up on stage for this photograph, please, Rakhi ma'am. 100. Thank you so much, sir, for joining in. I would love to thank each one of you for your immense presence. Okay. Silence, rolling. Yeah. What have you to say about this? You know, that was a good question. I think कितना regional cinema important होता जा रहा है. I think बहुत ही important होता जा रहा है. शायद उतना ही important जितनी हिंदी फिल्म है. तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी फिल्में बहुत ही अच्छी फिल्में बन रही है और क्वालिटी की फिल्में बन रही है. आप देखोगे तो शायद बहुत सारी हिंदी फिल्में अब अगर प्रेरणा लेती है और अगर सब्जेक्ट्स लेते हैं तो रीजनल सिनेमा से ही. तो आई थिंक क्योंकि रीजनल सिनेमा इतना ग्रो कर रहा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पे अटेंशन टू ऑल दिस सिनेमा. सर आपने ट्रेलर देखा, कितना अच्छा लगा आपको ट्रेलर? गुड स्क्रिप्ट or anything, would you be preferring to do a film actually? Yes, but you know the thing is, I'm at a stage where it's been 3.5 years and there's very little interest to do films. I am listening to scripts now, but let's see, I don't know what's going on in my mind at all. But yes, I don't differentiate I don't see any difference between regional and Hindi. It's as prestigious, as good to do, but also depends on the kind of time you have and what you are doing. So I know you're taking a break because of your son. Actually, you're trying to. No, not at all. I think Ahan will be launched. He's being launched by the best that there is in the business, Sajid Bhai. So he's very very secure. I think I came into a stage where Dad wasn't feeling too good also. So I think the best 3.5-4 years that I spent of my life was with him. Giving him all the attention that he deserved. Let's see, there's a lot other that is happening in my life, but hopefully soon I should get back to work. Your best wishes to them for the film. No, right now, I am making content, but I'm making different kind of content. It's not cinema. There is a lot of other stuff that we're doing. Happy doing that. The day I do get back into cinema, it will be definitely begin with Hindi. I'm not averse to any kind of regional language. I've always respected regional language a hell of a lot. If Sunil Shetty became Sunil Shetty, it was probably the films that he did from the south, Malayalam, Telugu, Tamil, whether it was Hera Fairy, whether it was Ant, whether it was Bhai, whether it was Krishna. There were a lot of Gopi Kishan, there were a lot of South remakes. So I respect regional cinema a hell of a lot, because somewhere down the line they understand mass and they understand emotions just beautifully. So full respect, and I'm here today because Ramesh ji and Raghav both are very very close to me. Ramesh ji is a very close friend of mine, a very wonderful human being, and for me what has always mattered is how good the individual is and my relations with people, and I've made sure that I've always kept that. So I'm here to wish the son Raghav the very best, and Ramesh ji as a producer first. वुमेन के एजुकेशन पे
ध्यान दे रहे हैं, और फिर इस तरह का न्यूज़ मिलना आसिफा के बारे में कितना दर्दनाक, कितना दिल दहलाने वाला है आपके लिए? मैं तो जान से मार देता हूँ उनको, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि घटिया जो काम किया हुआ, आई थिंक सारा देश खड़ा हो गया है, जो बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो बोलने में कभी कभी बोलते हुए ऐसे लगता है कि हम भी पब्लिसिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन खून खौलता है जब ऐसी बातें सुनते हैं। मैं और आतिया अगर काम करते आ रहे हैं बच्चों के लिए, तो आज से नहीं करते आ रहे, पिछले 27 साल से मैं जुड़ा हूँ सेव द चिल्ड्रन इंडिया से, जो बच्चों के लिए काम करते हैं और सिर्फ बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं। उन बच्चियों को जो फंसी हुई है गलत जगहों में, उन्हें वहाँ से निकाल कर उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि खून खौलता है। नहीं, आई मीन शर्मनाक बात है। आई थिंक एज इंडियंस हमको शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे ऐसी चीज़ों को बार बार नज़रअंदाज करते और पास होने देते हैं। लेकिन आई थिंक इस बार देश एक हुआ है और उन्हें सज़ा मिल रही है, और सज़ा छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, सज़ा ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा किसी को ऐसे सोचने से पहले भी डर लगना चाहिए। आई थिंक अच्छी बात कही आपने। तो आई थिंक सिस्टम बदलना बहुत ज़रूरी है, और हम सबको एक साथ होके खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। हल्का मचाकर फिल्म के बारे में राघव खड़े हैं साथ में, क्या कहना इधर कर लेते हैं। बड़ी मेहनत से बनाई है, बहुत अच्छी नीयत से बनाई है। लड़का कमाल का है, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, आपको लगेगा ही नहीं कि इसकी पहली फिल्म है। और इस फिल्म को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये दर्शकों के दिलो दिमाग पर और बॉक्स ऑफिस के रजिस्टर पर दोनों जगह जो है ये धावा बोलने वाली है। आपका जो रोल था पद्मावती में काफ़ी लोगों को पसंद आया है, बहुत एप्रिसिएशन मिली है, बहुत प्यार मिला है। तो आगे आपकी साइड से कौन सा ऐसा रोल होगा जो लोगों को प्रभावित करे? देखिए, रोल हथियाना तो मेरे इख्तियार में नहीं है। रोल को ईमानदारी से करना, मेहनत से करना, ये मेरे इख्तियार में है। तो जो भी रोल मेरे पास आएगा मैं उसके साथ पूरी ईमानदारी बरतूंगा, और मेरी ईमानदारी का सबूत ये है कि राज कपूर साहब ने मुझे अपनी 3 फिल्मों में लिया, संजय लीला बंसाली ने मुझे अपनी 3 फिल्मों में लिया। ये वो अपने वक्त के सबसे बड़े शोमैन, ये आज का सबसे बड़ा डायरेक्टर। अगर दोनों ने 3-3 बार लिया है तो मेरी मेहनत देखी होगी, मेरा डेडिकेशन देखा होगा, मेरी ईमानदारी देखी होगी। मैं जो भी करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ, वो छोटी फिल्म हो, वो भोजपुरी फिल्म हो, वो मलयालम फिल्म हो, अपनी तरफ से मैं कोई कसर उठा के नहीं छोड़ता। आज के दौर में आज हर जुबान पे, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बाहर हो, लोगों की जुबान पे आसिफा का नाम है। दिल दहलाने वाली जो घटना हुई है, आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? देखिए, कोर्ट फास्ट ट्रैक में ले रही है, और जुर्म साबित होने पर कोर्ट को सबूत और गवाह चाहिए होते हैं। अगर जुर्म साबित होता है तो फांसी से कम तो सज़ा नहीं होनी चाहिए जुर्म साबित होने पे, क्योंकि जिस तरीके से उस बच्ची को टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से उसको ड्रग किया गया, जिस तरीके से उसको बार बार रेप किया गया, दूसरे शहरों से बुलाया गया लोगों को रेप करने के लिए, मतलब इन लोगों ने, जिन्होंने भी किया है, उन्होंने तमाम दरिंदगी की हरकतें पार कर दी हैं। ये जानवर
बदतरीन जानवर भी, भेड़िए भी ऐसा सलूक नहीं करते किसी के साथ जो इन्होंने किया है, जिसने भी किया है। तो सबूतों के आधार पे अगर सबूत मिलते हैं, अगर ये जो भी है जो दोषी करार देता है, तो फांसी से कम का वो मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने रहम नहीं दिखाया इस बच्ची पे, और मुझे पूरा यकीन है कि अदालत भी, जिन्होंने इतनी बेरहमी से उस बच्ची के साथ सलूक किया है, अदालत भी उनके साथ रहम नहीं करेगी। सर, जब ऐसी घटना होती है तो गवर्नमेंट को कुछ तथ्य सर तुरंत न्याय देना चाहिए। कम हो गया, मतलब हम देखते हैं कि जब बड़ा एक्टर हो, जब बड़ा बिजनेसमैन पे इस पे केस हो, जल्द ही उस पर रिएक्शन कर दिया जाता है। कहीं ना देखिए, ये तो सरकार ने भी एश्योरेंस दिलाया है कि इसे फास्ट ट्रैक में लिया जा रहा है, और फास्ट ट्रैक का मतलब यह है कि सिर्फ इसी केस को अदालत देखेगी और जल्द से जल्द इस नतीजे पर पहुंचेगी। तो ऐसा भयानक जुर्म तो कोई ख्वाब में, सपने में भी नहीं सोच सकता कि इंसान, ऊपर वाले ने जिसे इंसान बनाया है, इंसान इस हद तक गिर सकता है, जानवरों से बदतर हो सकता है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। आपके हाथ में होता तो आप क्या सजा देते? देखिए, हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप पहले जुर्म साबित कीजिए, और जुर्म साबित होने पे सिवाय फांसी के फंदे के और कोई सजा नहीं है इसकी, कोई सजा नहीं। और भाई हाँ, सफल होगी और आपको कितना अच्छा लगा? देखो, नहीं पूरी पिक्चर अभी देखी नहीं है, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस है। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। ये राघव का लॉन्च है, राघव नैयर का, तो ऐसे फर्स्ट फिल्म बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेलर देख के लग रहा है एंटरटेनिंग फिल्म लग रही है, और कमर्शियल फिल्म लग रही है। तो हमारी बेस्ट विशेष, इसकी पहली फिल्म है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं हमारी। आपको कोई ऐसा प्लान है भोजपुरी पिक्चर प्रोड्यूस करना? नहीं, फिलहाल तो अभी तो नहीं है प्लान, लेकिन देखेंगे फ्यूचर में, अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आगे देखेंगे। काफ़ी बढ़ते जा रहा नहीं, रीजनल सिनेमा काफ़ी बढ़ते जा रहा है। नहीं, वो तो रीजनल नहीं, हम लोग इसलिए तो आए हैं, देखिए कैसे चल रहा है रीजनल सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा, ताकि हर एक सिनेमा चलता ही है। तो आजकल हमको लगता है कि हर एक जगह पे सब लैंग्वेज पिक्चरें अच्छी चल रही है। तो आज जो हम लोग ने ट्रेलर देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा, एंड डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि पिक्चर 100% चलेगी। आपकी एक और पिक्चर आने वाली है, आपने संजय दत्त को कास्ट किया, सस्पेंस थ्रिलर है वो अभी हम लोग यहाँ, हम लोग अभी नहीं बताएंगे। हम लोग आए हैं यहाँ अल्फा मजल के अल्फा में नहीं, अभी वो सब बाद में जब उसकी शुरू होगी तब वो बात है। एक लास्ट सवाल है, काफ़ी दिल दहलाने वाली घटना हुई है बॉलीवुड के हर एक्टर के जबान हाँ, पे देखो आसिफा का नाम है। वो भी क्या है कि जो हो गया, हादसा हो गया, सबको दुख है इस बात का। हम लोग यहाँ और पे अफसोस भी स्टैंडिंग कर जो रहे है हैं। कि है, अफसोस है, बहुत अफसोस यहाँ की के बात है। सबके 1 मिनट का साइलेंस रख के उसकी जो ऑनर के लिए, उसकी शांति के लिए सबने ऑनर किया। बहुत है क्या, बहुत बुरी बात है, इससे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। लास्ट एक और सवाल, एक मिनट। ना हम लोग है ना एक नहीं, हाँ, ये ना नहीं, चलो बाद में पूछ लें। हम फालतू में नहीं आए। अरे हम भी फालतू में नहीं आए, पहले हमारे फोटो लेने। ओके, क्या कहना चाहेंगी आप, कैसे मूड पे आई हैं पिक्चर के, और किस तरह से ट्रेलर आपकी आया, कितना प्रभावित हुआ है? देखिए, जैसे मैंने आप सबसे पहले भी कहा, ट्रेलर लॉन्च के टाइम पे संग्राम जी और रमेश जी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, एंड जब रमेश जी ने हमें ये हिंदी गाना सुनाया, सो आई रियली लाइक द सॉन्ग, एंड क्योंकि ये गाना हिंदी में था, मुझे एक नई लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ी। सो और एज एन एक्ट्रेस डांसिंग हमें अच्छा लगता है, तो हमने ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना सही समझा। बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं प्रियंका चोपड़ा, वो भी प्रोडक्शन चालू किया था, तो क्या उनकी तरफ से कभी ऑफर आया तो आप भोजपुरी सिनेमा में उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे? प्रियंका के साथ मैं मिस इंडिया में थी, और प्रियंका के साथ हमारी मिस इंडिया की जर्नी चालू हुई थी। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपना एक मुकाम पाया है। साथ साथ में वो रीजनल सिनेमा को सपोर्ट कर रही हैं, वो और उनकी मम्मी।
सो इट्स रियली नाइस, क्योंकि हमारे देश में हिंदी फिल्मों के अलावा बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं। साउथ इंडियन फिल्में बनती हैं, पंजाबी फिल्में बनती हैं, गुजराती फिल्में बनती हैं और मराठी फिल्में बनती हैं, और हाँ भोजपुरी फिल्में बनती हैं जिसके ट्रेलर लॉन्च पे आप लोग सब आए। तो हम एज अ हिंदुस्तानी जब अलग अलग क्षेत्रों के फिल्मों को सपोर्ट करेंगे तो आई थिंक कहानी में जितना दम है वो बाहर आएगी, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैं ऑब्वियसली साउथ फिल्म में ज़्यादा काम करना चाहूँगी। मैंने ज़्यादा काम नहीं किया साउथ फिल्मों में। मैंने टेलीविज़न किया है हिंदी में और हिंदी फिल्में करी है, और अभी ये गाना भोजपुरी में किया, वो भी हिंदी था। सो आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट, बिकॉज आई थिंक एज एन एक्ट्रेस मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं एक सिनेमा तक ही लिमिटेड रहूँ। लोगों ने सभी ने कहा है जब इस तरह का केस आता है न्यायालय प्रजातंत्र बहुत समय लेते हैं अपने सुनवाई के और कंप्लेंट को बहुत ही टाइम लगाते हैं। गिरफ्तार हो भी जाए तो बहुत जल्दी वो बाहर आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब बिजनेसमैन और एक्ट्रेस के साथ ऐसा हो तो जल्द ही सुनवाई की जाती है। क्या लगता है? जी हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि इंडिया आज की तारीख में अगर इंटरनेशनली फेमस हो रहा है तो गलत रीजंस की वजह से हो रहा है। हमारे यहाँ कुछ वर्ष पहले निर्भया का रेप हुआ था, उसके बाद अभी इस आसिफा के रेप और मर्डर के बारे में हमने सुना है, और बहुत सारे केसेस रेप के और सेक्सुअल असॉल्ट के हमको सुनने में आते हैं भारत में, जो बहुत शर्मनाक है। और आई थिंक इसकी वजह हम रिलीजन पे नहीं डाल सकते, इसकी वजह हम पॉलिटिक्स पे नहीं डाल सकते, और हम एज सेलिब्रिटी और एज मीडिया जैसे आप लोग हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे रिलीजन पे नहीं डालें, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा है कि हमारे भारतीय पुरुष फीमेल को इस नज़रिए से क्यों देखते हैं। आर दे एक्चुअली सो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कि उनको छोटे बच्चों का रेप करना है, गैंग रेप करना है और मर्डर करना है? और अगर यही उनकी सोच है तो ये सोच क्यों है उनकी? उनके घर में उनके माँ बाप ने उनको ऐसे कैसे बड़ा किया कि वो फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? तो हमारे लिए, मीडिया के लिए सोचना ये ज़रूरी है कि हमारे इंडियन मेल्स की थॉट प्रोसेस ऐसी क्यों है, एंड नॉट कि ये लड़की हिंदू है या मुस्लिम है या दलित है, ये सोच गलत है। इसके अलावा येस, रेप शुड हैव अ वेरी सीरियस पनिशमेंट, अ वेरी पनिशमेंट बाय डेथ इन इंडिया, बिकॉज ये चीज़ को बहुत लाइटली लिया जाता है। बट ऑब्वियसली हमें प्रॉपर लॉज रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसे लॉज बन जाए जहाँ से इनोसेंट आदमी लोग फंस जाए। बट येस, वी हैव टू डू समथिंग कि हमारे देश में फीमेल रेप स्टॉप हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।